Good evening, guys. Warm welcome to all. Anurag here, and today I will be presenting the market outlook session for 27th June 2022. In this video, we will discuss about Nifty, Nifty Bank, and few important things that we have to watch out for tomorrow. So the US markets closed really well on Friday. US 100, that is the technology index in America, it closed 3.84% higher, 447 points. US 30 closed 3.02% higher, and S&P 500 closed 3.06% higher. So the US markets have done really well on Friday. I just wanted to share one price action study on Dow Jones Industrial Average. So let me just take you to the charts of Dow Jones. This was the COVID high of Dow Jones Industrial Average. It broke this out in November 2020. After that, we have retested this level in June, and now we have continued from the same level. तो अब important thing ये देखने को होगी कि whether this is a bounce just because this was an important level earlier, या फिर इस level से now we will see some continuation ahead. Continuation आने का मतलब फर्दर क्या हो सकता है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ. अगर इस वीक भी डाउ जोन्स एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, इफ इट गिव्स अस अ फॉलो अप ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ से वापस से बुल्स बाइंग चालू कर रहे हैं. तो लेटर ऑन व्हाट यू कैन सी इन द मार्केट, कि जब भी मार्केट में डिप आएगी तो या तो यहाँ पे डाउ जोन्स अपना डबल बॉटम बनाएगा, या मे बी एक हायर लो बना के फिर से ऊपर चला जाएगा. तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आगे वाले वीक्स में यू हैव टू ट्रैक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड क्या प्राइस एक्शन इस पे हो रहा है. CNX ऑटो डन रियली वेल दिस वीक इन इंडिया. मैंने आपको एक सेक्टर एनालिसिस भी भेजा था कुछ टाइम पहले ऑन द फ्री चैनल. लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट. So I think I shared the yes. तो मैंने आपको यहाँ पे भेजा था निफ्टी वर्सेस निफ्टी ऑटो स्ट्रेंथ कंपैरिजन ड्यूरिंग दिस डाउन ट्रेंड. तो यहाँ पे निफ्टी जब एक ही जगह पे लो बना रही थी एंड उसके हाईज नीचे आ रहे थे, तो यू हैव सीन दैट निफ्टी ऑटो वाज द सेक्टर व्हिच वाज मेकिंग हायर लोज. तो निफ्टी ऑटो वाज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग टू निफ्टी, एंड जब अब निफ्टी ने पुल बैक दिया लास्ट के 2-3 डेज में, तो यू हैव सीन सम बिग मूव इन दी ऑटो स्टॉक्स. एंड मारुति, M&M, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एंड जो भी ऑटो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया इस वीक, एंड they will continue to perform well considering it is the most strongest sector in Nifty right now. ठीक है. इसके अलावा टू ऑफ द लेगार्ड जो सेक्टर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं वो हैं निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मेटल. तो डेफिनेटली इफ निफ्टी मूव्स हायर, तो इन दो सेक्टर्स को थोड़ा सा फॉर्म करना पड़ेगा टू गिव कंट्रीब्यूशन टू दैट मूव. ठीक है. एक और स्टॉक है जो निफ्टी के मूवमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज रिलायंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट रिलायंस अ बिट, एंड उससे पहले मैं आपको एक बार डेटा के बारे में बता देता हूँ. हाउ इज द डेटा. जस्ट अ सेकंड. ओके. तो सुबह मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था. आई टोल्ड यू दैट FI's transactions looks bullish because they have increased stock future longs and they have decreased index future shorts. Fine. Clients' positions are not indicating any bias of direction and pros are looking bearish. So it is a mixed data because participants are not very clear, and we are not seeing the proprietary desk traders and the foreign institutional investors betting on the same direction. The both of them are betting on the different directions. Okay. It is a mixed data and markets are most likely to open at a good gap up as US markets closed very strong. ठीक है. तो markets are already trading 1% higher. If we see SGX Nifty, it is trading at 15,859. So markets are expected to open at a gap up tomorrow.
and it will be a good gap up almost 1%. अगर US markets positive रहते हैं, US futures सुबह, तो definitely we will open at around 1% gap up on the markets. ठीक है. Now एक बार मैं आपको बता देता हूँ how after opening gap up अपन को कैसे play करना होगा markets. ठीक है. As of now SGX Nifty is around 15,860, तो उसके हिसाब से let us assume the opening and कुछ सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं. So these are the important levels that I have marked on the charts of Nifty. अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि मैंने ये लेवल्स क्यों मार्क किए. This was the time जब निफ्टी ने काफी टाइम बाद फिर से एक बार 2 ग्रीन कैंडल्स लगातार बनाई. इस दिन I also told you on the Twitter, मैंने आपको अपने ट्विटर पे भी एक अपडेट दिया था कि निफ्टी हैज मेड 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स और एक रेंज भी बन रही है. तो जैसे ये रेंज टूटेगी वी विल सी सम गुड मूव ऑन द इंडेक्स. तो वैसे ही हुआ, ये रेंज टूटी, एक बहुत ही अच्छा मूव आया इंडेक्स में. देन लेटर ऑन वी रीटेस्टेड दिस, ये जो लेवल था इसको रीटेस्ट किया, गैप भी फिल कर दिया, जो स्मॉल गैप अप था उसको भी फिल कर दिया, इस रेंज को भी रीटेस्ट कर दिया और देन यहीं से मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया और वापस से ऊपर चला गया. नाउ वन इम्पोर्टेंट लेवल जो ऊपर के लेवल अब आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है इस कैंडल का हाई. बिकॉज लास्ट एक्सपायरी पे थर्सडे पे यही वो कैंडल है जिसने अपने को प्रीवियस लोज का ब्रेकडाउन दिया. तो डेफिनेटली ये कैंडल है जिसमें बहुत ही अच्छा सेलिंग मोमेंटम था मार्केट में. एंड इस कैंडल के हाई के पास डेफिनेटली वन मोर टाइम जब अपन आएंगे तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में. एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ. दिस वाज द वेरी क्रूशियल लेवल जहां से अपन ने 2 बार बाउंस किया था मार्केट में. ये वो लेवल्स थे एंड यही वो लेवल्स हैं जो निफ्टी पिछले 2-3 दिन से तोड़ने की कोशिश करती है. बट टुमारो व्हाट कैन हैपन, जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये लेवल ऑलरेडी ब्रोकन होगा. बट जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था, जब जिस एरिया से ब्रेकडाउन चालू हुआ था उस एरिया पे अपन वापस आ जाएंगे. ठीक है. तो दीज लेवल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ये वो लेवल्स होंगे जो अपने को इम्पोर्टेंट वॉच आउट करने हैं कल के और इस वीक के मार्केट में. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होंगे मार्केट. ठीक है. ये लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा जब अपन ऊपर खुलेंगे इसके. ठीक है. तो नाउ लेट अस सी कि क्या होता है इन लेवल्स पे. अब मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और एक ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है ये भी बता देता हूँ. यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी पिछली बार 1, 2 एंड 3. इन 3 दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था. तो ये वाला जो कैंडल का लो है, दिस बिकम्स अ गुड रेजिस्टेंस नाउ. जब अपन वापस से नीचे आ गए, इसको तोड़ के गैप डाउन करके मार्केट ने तोड़ा, अब जब वापस ऊपर जाएगा तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत ही इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा सेलर्स एक्टिव रहेंगे. तो ये लेवल है 15,900 के पास. लेट अस मूव ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दिस लेवल विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट हर्डल फॉर द इंडेक्स. तो जब मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, मार्केट हैज ऑलरेडी ब्रोकन दिस रेंज, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, गैप फिल किया, फिर से ऊपर गया. अब इस लेवल पे मार्केट गैप अप होके खुल सकता है. ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू डू, अपन अगर बाइंग करेंगे तो अपन इस लेवल के ऊपर करेंगे. ठीक है. दिस इज द लेवल जिसके ऊपर कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट अब फेक नहीं है. ठीक है. बिकॉज यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी और इसके नीचे जब तक मार्केट है तो डेफिनेटली इट विल टेक अ गुड रेजिस्टेंस टिल हियर. तो अगर मार्केट एक बार इस लेवल के ऊपर बंद भी हो जाता है, ये वाला जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है इसके ऊपर बंद हो भी जाता है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो. आपको कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि मार्केट इसको ब्रेक करे, थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक करे, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे इंडेक्स में. एंड योर नेक्स्ट टारगेट विल बी द गैप. जो ये जो गैप बना हुआ है इंडेक्स में, ये आपका एक नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा. ठीक है. एंड ये भी कंफर्मेशन तभी मिलेगी कि ये गैप फिल होगा जब अपन इस लाइन के ऊपर निकलना चालू हो जाएंगे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि मार्केट यहाँ से आपको ब्रेकआउट देगा, बहुत सारे लोगों को इस एरिया में ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से अंदर आ जाएगा एंड बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में. तो प्लीज अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो तो इस लेवल के ऊपर ही बाय करना. अदरवाइज आप ट्राई करना कि अगर यहाँ पे आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको. एक और थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, जब से 2 ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद वी आर नॉट सीइंग अ रिपीटेशन ऑफ रेड कैंडल. यही चीज आपको आगे कंटिन्यूअसली वॉच करना है इंडेक्स पे. जब तक 2 कंटिन्यूअस रेड कैंडल नहीं आ जाती डेली चार्ट्स पे तो वापस से सेलर्स का डोमिनेंस नहीं दिख रहा है.
ठीक है, तो जब तक लगातार ग्रीन कैंडल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है चार्ट पे, इट इज अ ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट, नीचे से ऊपर आ रहा है और आपको वैसे ही खेलना है कि जो भी डिप आपको मिलती रहे आपको वो बाय करनी है तब तक। ठीक है, आपको डिप तब बाय नहीं करनी होगी और सेल ऑन राइज स्टांस वापस से मेंटेन करना होगा जब एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल भी फॉलो अप देके बंद हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक is a stronger index. Nifty से ज्यादा strong है निफ्टी बैंक because let us see why. यहाँ से निफ्टी बैंक ने गैप डाउन दिया था, अब निफ्टी बैंक वहीं पे आके क्लोज हो गई, बट निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। निफ्टी ने आपको गैप डाउन दिया बट ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। इसका ये मतलब है कि निफ्टी हैज लेस स्ट्रेंथ देन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी से, एंड दिस इज बिकॉज निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी के, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए जो निफ्टी बैंक है वो आपका एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स बन जाता है। एंड ऑल्सो एक और चीज जो आप देख सकते हो ईएमए बेसिस पे भी, निफ्टी इज एट अराउंड 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुका है और जहां पे कल निफ्टी खुलेगा वो उसका 20 ईएमए होगा। ठीक है, 20 ईएमए होगा, तो 20 ईएमए का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा निफ्टी पे। निफ्टी बैंक जो है उसमें आप ऑलरेडी आई थिंक 20 ईएमए के पास ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे ही आप इस लेवल के ऊपर जाओगे तो ये आपका एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा जब आप नीचे आओगे, बिकॉज यही प्राइस एक्शन सपोर्ट भी है और यही 20 ईएमए सपोर्ट भी है मार्केट के लिए। नाउ एक चीज जो कल हो सकती है वो ये है कि अपन इन दो जोन्स के बीच में खुल जाए। तो अगर इन दो जोन्स के मार्केट बीच में खुल जाता है एंड निफ्टी आपको नीचे आते हुए दिखती है, अगर अपन रेजिस्टेंस पे खुल रहे हैं तो निफ्टी नीचे आ रही है, बट निफ्टी बैंक बिकॉज इसके बीच में खुल रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली चॉपी मार्केट सेटअप कल बन जाएगा, बिकॉज आपका इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपका निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे आ रहा है इस लेवल से, तो डेफिनेटली दिस विल बी बिकॉज आपके निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल या फिर कोई ऐसा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा जिस वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही बट निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है। तो एट दैट टाइम आपका मार्केट है वो ओवरऑल चॉपी हो जाएगा। ठीक है, दोनों इंडाइसेस अगर एक डायरेक्शन में मूव करती है तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है एंड उस दिन ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप बनता है इंडेक्स पे। ठीक है, एक जो क्रूशियल लेवल मैंने मार्क करा है निफ्टी बैंक पे वो ये लेवल है जहां से गैप डाउन हुआ था, उस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया, बिकॉज दिस इज द लेवल वेयर सेलर्स विल बी प्रेजेंट व्हेन वी विल गो हायर। तो ये लेवल मैंने मार्क करके रखा है। अगर नियर टर्म में मार्केट यहाँ आएगा तो दिस इज द एरिया जहां पे बायर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे एंड सेलर्स डोमिनेट करना वापस से चालू कर सकते हैं। बिटवीन दिस जोन अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज के बाहर खुलता है, जो कि वो खुलेगा प्रीवियस डे रेंज के बाहर ही खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो अपन को देखना है कि वो गैप अप सस्टेन कर रहा है या गैप अप को फिल करने की कोशिश कर रहा है एंड उसी डायरेक्शन में अपन को पैसा लगाना होगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट रिलायंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलायंस ने जब से यहाँ पे टॉप बनाया है, व्हाट इज हैपनिंग, आपको रिलायंस में कभी भी एक ग्रीन कैंडल का फॉलो अप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर यहाँ पे 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 बनी और अब यहाँ पे बनी। ठीक है, तो कल मार्केट गैप अप खुलेगा और मे बी शुरू में आपको बुलिश दिखे बिकॉज वो 1% ऊपर खुल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक पे फोकस रखना, बिकॉज इस स्टॉक ने अभी तक एक भी ग्रीन कैंडल का कंटिन्यूएशन नहीं दिया है इस डे से। ठीक है, काफी सारे वीक्स हो चुके हैं एंड रिलायंस इज नॉट गिविंग अस अ कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रीन कैंडल। तो मे बी हो सकता है रिलायंस ऊपर खुले, गैप अप हो जाए मार्केट के सेंटीमेंट के साथ एंड लेटर ऑन इट क्लोज इन रेड टुमारो। तो रेड अगर क्लोज होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की रिलायंस में, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि ये गैप अप को सस्टेन करे एंड कंटिन्यू करे, तो उस केस में आप रिलायंस को स्विंग बाय करने की भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप रिलायंस में लगातार दूसरी बुलिश कैंडल देखोगे जो काफी टाइम से नहीं हो रहा। तो इस वजह से हो सकता है मार्केट्स और ज्यादा बुलिश हो जाए, आपको निफ्टी के लिए भी एक कंफर्मेशन दे दे कि मार्केट्स आर बुलिश, और ये आपको ये कंफर्मेशन भी दे दे कि आप रिलायंस में भी यहाँ से स्विंग जा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ऊपर खुलेगा और फिर वापस से नीचे आके बंद हो जाएगा, तो दैट विल क्रिएट अ रेड कैंडल ऑन द डेली चार्ट्स ऑफ रिलायंस। तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हो कल। टू इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन दी ऑटो सेक्टर आर टीवीएस मोटर्स और एमएनएम। टीवीएस मोटर्स का मैंने आपको शेयर किया ही था अभी, जिस दिन ऑटो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आई टोल्ड यू कि आप टीवीएस मोटर्स पे ध्यान रख सकते हो
एंड इट वाज नियर 770 एट दैट टाइम. नेक्स्ट डे उसने 805 हिट कर दिया. तो दिस इज अ रनिंग ट्रेड. मैंने आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ग्रीन और रेड से मार्क कर रखा है. तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये स्विंग ट्रेड ली थी एंड इट इज अबाउट टू हिट आवर टारगेट्स. ठीक है, ये भी टारगेट हिट करने ही वाला है. लेट मी टेक यू टू द मंथली चार्ट्स ऑफ टीवीएस मोटर्स. तो टीवीएस मोटर्स का मंथली चार्ट भी बहुत अच्छा है एंड आई विल ट्राई टू ट्रेल दिस ट्रेड. यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था छोटा सा, उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी, उसके बाद वापस से इस लेवल का रीटेस्ट किया और वापस से अब उसी लेवल पे आ चुका है. तो इफ इट ब्रेक्स दिस आउट, ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, तो डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स एक बहुत ही अच्छी मूव दिखाएगा आपको कमिंग मंथ्स और वीक्स में. दिस इज अ स्टॉक दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर इन दी ऑटो सेक्टर. ये टू व्हीलर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी. और सेकेंड स्टॉक जो ऑटो स्टॉक्स में है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा. ये फोर व्हीलर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी. इसने मंथली चार्ट्स पे आपको 2018 के लेवल्स का ब्रेकआउट भी दिया है और फॉलो अप भी दिया है. अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे महिंद्रा को, तो इट हैज गिवन अस अ ब्रेकआउट देन रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन. तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी इस मार्केट में. मोस्ट ऑफ द डिप्स दैट कम इनटू दिस स्टॉक आर बायबल डिप्स. इसको आप अपने बाय ऑन डिप रेडार पे रख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को. दिस इज लुकिंग वेरी गुड और इसने अभी रिसेंट स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया है. तो अगर कल ये आज का जो इसका फ्राइडे का हाई है वो तोड़ के सस्टेन करता है या फिर गैप अप होने के बाद कंटिन्यू करता है, तो डेफिनेटली महिंद्रा इज वन स्टॉक जो आपको बहुत ही अच्छी मूव इंट्राडे में भी देख सकते हैं. और स्विंग रेडार पे भी आप महिंद्रा को रख सकते हो बिकॉज इट इज लुकिंग वंडरफुल. तो दीज आर द फ्यू मनी मेकिंग आइडियाज. ये मैं आपको शेयर करना चाहता था इस वीडियो में. निफ्टी के मैंने आपको क्रूशियल लेवल बता दिए, बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप क्या क्या मार्क करके रख सकते हो. रिलायंस को आप वॉच आउट कर सकते हो कल के लिए, बिकॉज कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगी और ये आपको बताएगा रिलायंस की क्या वो गैप अप होने के बाद सस्टेन कर रहा है. अगर कर रहा है तो इट कैन बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन. नहीं कर पा रहा तो रिलायंस शुड नॉट बी योर पिक फॉर कमिंग डेज, बिकॉज इवन आफ्टर स्ट्रेंथ इन द मार्केट रिलायंस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो रिलायंस आपकी रेडार पे नहीं होना चाहिए बाइंग का उस केस में. अगर वो लगातार दूसरी ग्रीन कैंडल बना देता है, then it should be on your buying radar for swing for the coming days. So this is the market outlook video for tomorrow. इसमें आप काफी चीजें आपको समझ आई होगी एंड रिलायंस में ट्रेड आइडिया भी मैंने दिया. मे बी कल इम्प्लीमेंट नहीं हो, लेटर ऑन कभी दो ग्रीन कैंडल्स बने तो आप उस दिन से इसमें इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हैं. और कल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर रिलायंस गैप अप होता है और कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो यू कैन थिंक ऑफ सेलिंग रिलायंस इन इंट्राडे. थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. इसके अलावा आई हैव आल्सो शेयर्ड परफॉर्मेंस ऑफ आवर करेंसी ट्रेडर्स. मैंने शेयर किया आपके साथ फ्यू ऑफ द स्क्रीनशॉट्स जो मुझे मिले हैं. अभी एक और स्क्रीनशॉट मिला है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट. अभी यहीं पे अपलोड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सो एक और स्क्रीनशॉट आया है एंड जो भी आएंगे मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर दूंगा. वन मोर, दिस इज फ्रॉम आई थिंक 7th of June. ये 2 वीक्स का P&L है, 7 to 8,000. तो जो भी एग्जीक्यूट करना चालू कर रहा है करेंसी सेगमेंट में, दे आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स एंड दे ऑल आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट विद अ लेस कैपिटल. तो लेस कैपिटल पे दे आर जस्ट ट्राइंग एंड दे आर सीइंग वंडरफुल रिजल्ट्स. तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. तो जो भी करेंसी सेगमेंट के बारे में सीखना चाहता है, लेट अस नो. ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, इसमें करेंसी ट्रेडिंग का ऑप्शन है, वो सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप मेंटोरशिप के लिए आपका स्लॉट बुक हो जाएगा. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो.